energetic, we request the students sitting over there to come forward. The first objective of this training is to make you people comfortable. Yes, you people there, can you please come forward? People over here, you can also step forward. You two there. You know what? You people are clearly visible from here. Come forward. Please come forward. Shad, I'm able to hear the sound of the cooler more than you. Good morning. Good morning, madam. Super. How are you feeling today? अभी थोड़ी देर में सब electrified हो जाएंगे उसमें. I have strong confidence. Like for now, you are not able to give me an answer as to how are you feeling today. But by the end of the session, I'm sure you will all have the highest voice to tell that this is one of the best sessions that you have come across. Welcome you all to this training on Campus to Corporate. The specially designed training for all 3rd and 5th semester students of RGI. I am sure some are from GHRU Amravati and some are from IET. Could you please raise your hands? GHRU? IET? Thank you so much. So Campus to Corporate, this has now become a very common term, right? But the fine part is the skills that are associated with campus and corporate and the expectations that campus should give to corporates, or rather the expectations that the corporate have is being like widening for quite some time now. Jaise technology enhance ho raha hai, and it's not just like you need to have one degree with you. Getting a degree is again a common thing nowadays, but getting a skill or getting few skills that are required or the major requisite in the corporate world today or for your jobs is getting widened, as I said. So for this particular session, I think the main advantage that I could see today is there are limited numbers in this auditorium. And the expert whom we have today is someone who has got a lot of skills, who can enhance your skills and at the same time ensure your campus to corporate training is well served. Because ये चीज जो है, it's not only about you getting a job, it is about an individual growth, your self-discovery, and at the same time your career pathway. So this is going to be taken care by an expert whom we have with us today, Mr. Vishesh Prasad. I think few of you would have already had interacted with him now. Kitilo, excited? Looking forward for the session? But not just before making an attempt to introduce him. He's a highly skilled and passionate trainer with enthusiasm, humor, and a dedication to transforming life through effective coaching methodologies by using simple and easy to use tools. Over a decade, he has provided training to international corporations, students, and professionals, reaching more than 30,000 participants. So you're going to be few more added to the list. With exceptional presentation and training abilities, with over 15 years of corporate experience along with various certification, he is amidst us to take care of the training on campus to corporate. So without any further ado, let's welcome Mr. Vishesh Prasad. Over to you, sir.
So on. Quick. Day one of the college, not yours, of a person, a guy, a boy, he saw a girl. How many of you remember the story? याद नहीं है? Let me re-share the story with you. Day one of the college, guy saw a girl and he said, शादी करूँगा तो इसी से, पहली नजर का. So you know that. But then he didn't have the courage to go and talk to the girl. So एक साल ऐसी बीत गया. Second year, all the friends motivated him. जयेश्वरी और जिंद्रा के वीडियोस दिखाए गए उसको. Remember? मनदीप जयेश्वरी. And he got all motivated. और दोस्तों ने बोला जा भाभी को अपने दिल की बात बता दे. So boys will understand this, भाभी. So he started walking towards the girl with all the confidence and everything. And one of the same friends, they shouted, "Hey कौवे, कहाँ जा रहा है?" वापस. Now final year, बोला अब नहीं तो. So with all the self-motivation and courage that he had, with all the communication skill, with all the soft skill session that he had done in the college, he started walking towards the girl, and he goes to the girl and he says, my name is विशेष. The girl says, इतने साल से हम लोग सेम क्लास में, तेरे को लगता मेरे को तेरा नाम नहीं मालूम? वापस 5 years later, 5 साल बाद VR मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे बंदा खड़ा है. On the escalator he sees n number of faces in the crowd, and he sees the same face. बोला आज यहीं प्रपोज करूंगा इन दिस हॉल. फॉरगेट अबाउट प्रपोजिंग, यहीं शादी करके लेके जाऊंगा इसको मॉल में. सो एस्केलेटर के सामने जाके खड़ा हो गया. स्लोली द क्राउड इज कमिंग ऑफ, और सिर्फ फेस की जगह पूरी बॉडी दिखती है और हाथ दिखता है, और हाथ में एक और हाथ है, और वो छोटा हाथ है. ही इज इन शॉक, वहीं खड़ा है. द गर्ल रिकॉग्नाइजेस गर्ल. अरे विशेष, बंटी, मामा को हाय बोलो. उठाता है गोदी में. अरे सही टाइम पे बोल दिया होता ना, पापा बोल रहा होता. What do you learn from this story? Now I'm asking both boys and girls. How many of you would like to become mama or bua? Nahi na? No, right? So what did you learn from the story? देखो इंटरैक्टिव सेशन है. इट इज नॉट अ सेमिनार. वी आर हेयर टू गेट ट्रेन. सो हम बात करेंगे थोड़ा, जैसे हम कुछ लोग सभी कर रहे थे. यस. सो आप रोहन, मोहन, गुनगुन, गुंजन, इन सब लोगों से पूछ सकते हैं. मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं, काटता नहीं. यस, डू यू एग्री गाइस? सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? बोलो कोई बात.
फैकल्टीज कुछ नहीं बोलेंगे, सोचो वो है ही नहीं यहाँ पर, इट्स ओनली यू एंड मी। अपना छोटा भाई समझ के बताओ। यस, स्पीक अप बिफोर इट्स टू लेट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। सो रोहन, राइट? सो रोहन जी की जोरदार ताली होनी चाहिए। ओ, यहां पर जोरदार इसको बोलते हैं क्या? ये जोरदार है। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। एनीथिंग एल्स, एनीबडी एल्स? If you ask, you are fool for a minute. If you don't, you are a mama. अगर आप पूछोगे तो शायद 1 मिनट के लिए बेवकूफ कहलाओगे, बट नहीं पूछोगे तो मामा या बुआ। एंड वी डोंट वांट टू बी मामा एंड बुआ, राइट? यस, खड़े हो सकते हैं आप लोग? कैन यू प्लीज स्टैंड अप? कुड यू प्लीज स्टैंड अप एवरीबडी? कितने लोग के पास पैर हैं? खड़े होके बताओ। ओके, बैग उठाइए आपका। लिफ्ट योर बैग्स, लिफ्ट योर बैग्स। हाथ है कितने लोगों के पास? बैग उठा के बताओ। ठीक है, कम आउट, इधर से बाहर, कम आउट, यहां से बाहर आइए। हाफ क्राउड, कम आउट फ्रॉम दिस साइड, कम आउट, कम आउट। हाँ, थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, थोड़ा सा और वन मोर स्टेप, वन मोर स्टेप। हाँ, और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, बस 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 बस, दैट इज टू मच। कम डाउन, कम डाउन, कम डाउन एवरीबडी, कम कम कम। शर्माओ नहीं, अपना ही कॉलेज। ठीक है। सो ये जो फ्रंट 3 रोज है वहां पर मुझे सब चाहिए। जो पीछे बैठेगा वो डांस करेगा स्टेज पे अभी। एंड यू हैव 20 सेकेंड्स। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Those who are standing on the stage. Those who are standing on the stage. थर्ड रो के पीछे जितने लोग बैठे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑन द स्टेज। चलो स्टेज पे आओ जल्दी। आई सेड फर्स्ट 3 रोज, कम अप फास्ट, जल्दी। अरे हेलो, 4th and 5th रो, कम ऑन द स्टेज। Everybody will dance on my favorite, one of my favorite song, and I love ghazals. Only first 3 rows. So these people are smart. आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। कम, यहाँ आइए। अदिति, राइट? अदिति, हाँ? जिज्ञासा, ये चारों को लेकर आओ सामने, वो भी तीनों पीछे चलो जल्दी। डांसर्स ऑन द स्टेज, जल्दी आओ, ये फ्रंट रो खाली यहाँ पे। चलो लास्ट 7 सेकेंड, एक्स्ट्रा 7 सेकेंड। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2। अरे इधर देख के बैठना है, संभल के गिरो। देखो कितना अच्छा हुआ ना, जिज्ञासा के लिए बैठे थे, भी दोस्त मिल गए हमें। 4th रो वाले आ जाओ स्टेज पे। आई सेड फर्स्ट 3 रोज। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पीपल। जल्दी आओ, डोंट वेस्ट टाइम। वैसे बहुत टाइम वेस्ट हो गया। वी नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट्स योर गुड नेम? स्माइली फेस। आपका नाम क्या है? कोमल। सो कोमल, बी स्ट्रॉन्ग एंड कम ऑन द स्टेज। आ जाओ। नहीं, फर्स्ट 3 रोज में बैठ जाओ, फिर जल्दी आके।
So there are two kinds of motivation. अच्छा, हवा मेकअप खराब हो जाएगा नहीं तो. Four, 3, 2, 1. फोर्थ रो में जो बैठे हैं आ जाओ. सेटल. Anything? Tea, coffee, snacks? Nothing? Komal? Sure? Okay. हाँ, अभी लग रहा है कि मैं कुछ लोगों के साथ हूँ. So, let's get back to the story, shall we? So, what did you learn from the story? पहले तो बताया कि पूछो नहीं तो मामा बन जाओगे या बुआ बन जाओगे, वो नहीं बनना है. सेकंड, why was he not able to communicate? 3-4 years क्यों लग गए? Confidence, very good. What else? Fear. Somebody said, किसने कहा fear? Very good, fear. और fear of rejection. ना बोल दिया तो next. हेलो, no miss next opportunity. ठीक है, तेरी फ्रेंड का नंबर दे. हेलो, सिंपल रखने का, लाइफ इज सिंपल. व्हाट एल्स? सो देयर वाज प्रॉब्लम विद कम्युनिकेशन स्किल्स. बेसिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए भी कम्युनिकेशन चाहिए. हेलो, बाय द वे, आई एम नॉट ट्राइंग टू मोटिवेट यू. आई डोंट वांट टू हियर फ्रॉम द कॉलेज इन माय फीडबैक कि अरे कल 150 लोगों ने प्रपोज किया है हमारे कॉलेज के अंदर में. दैट इज नॉट व्हाट आई वांट यू टू टेक फ्रॉम दिस स्टोरी. सो वी नीड टू वर्क ऑन आवर कम्युनिकेशन स्किल. ये तो पक्का है. क्यों? कितने लोग ने प्रपोज किया आज तक? यहां पर हाथ मत उठाओ. कितने लोग नहीं कर पाए? वो हाथ उठाए. सी 1.5 है. आपने किया था? आप किए किसी को प्रपोज आज तक? हाँ, आप नहीं तो उसका मत उठाओ. It is not only about proposing, it is also about keeping what is in your mind. What do you need in front of anybody, be it college, be it parents, or be it your friends. कि आज मूवी देखने चलते हैं. Yes, no? So that confidence is missing. Especially कोविड में तो बहुत, जैसे कोविड बोलता हूँ लोगों को याद आ जाता है बिना ब्रश के स्क्रीन के सामने बैठना. उसमें बहुत ज्यादा असर पड़ा है. एंड सी, आई एम समबडी हु इज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड कॉलेज, बिकॉज आई गो टू इंडस्ट्रीज एज वेल. आई स्पीक टू द HR, आई speak to the managers, I train them as well, and I ask them what is the problem. They also tell me number one problem that is today is the Gen Z. They don't communicate well. ऐसा नहीं कि वो बोल रहे हैं कि बोलना नहीं आता, आ रहा है बट क्या बोलना है वो पता नहीं. The number of introverts are increasing. इंट्रोवर्ट्स पता है? अच्छा, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? इट कैन बी गुड अगर आप इंट्रोवर्ट हो ट्रूली. ज्यादातर लोग तो जस्ट लेबल देमसेल्फ दैट दे आर इंट्रोवर्ट्स. दे आर नॉट. कॉन्फिडेंस की कमी और इंट्रोवर्ट में फर्क है. इंट्रोवर्ट इज अ पर्सन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट. हेलो, व्हाट इफ आई टेल यू दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट? बिलीव नहीं करोगे ना, बट आई एम.
बट आई हैव लर्न एंड आई यूज फ्यू टूल्स. मैंने कुछ ऐसे टूल्स सीखे हैं जिसको यूज करके मैं लोगों से इजीली डेवलप कर पाता हूँ, कम्युनिकेट कर पाता हूँ. वो मैं टूल्स आज आपको सिखाना चाहता हूँ, इफ यू आर रेडी टू लर्न. यस, सो यू ऑलरेडी नो माई नेम इज विश्वास, नहीं विशेष. क्या नाम है मेरा? क्या नाम है? आई एम नॉट सर, आई एम विशेष. ठीक है, सर नहीं हूं मैं, आई एम. तो यू विल कॉल मी, यू विल कॉल मी, यू विल कॉल मी विशेष. What are the other skills that I get feedback that is lacking? Another is point number 2 is designs lack goals. उनके गोल ही विचित्र हैं, अलग ही गोल है. क्या मैं कौन से महंगी कॉफी पी लूं? हाँ, कैसे मैं बाइक लेके लेह लद्दाख निकल जाऊं? विच इज गुड, होना चाहिए. बट देन अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ वर्क गोल भी तो होना चाहिए ना, कि लद्दाख बाइक लेके तो पहुंच गए, लेकिन पेट्रोल के पैसे तो धक्का देकर जाओगे क्या? थर्ड थिंग दे टेल अस, और us when I say, so all the trainers, us is whenever it comes to leadership skills, again that is a challenge. They are not able to take leadership roles properly. They are very good sheep. Hello? I am quoting the exact line जो मुझे one of the big companies के डायरेक्टर ने बोला है. नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि आप उनको इंस्टा पे और लिंक्डइन पे कमेंट पे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बोलने लगोगे. So we are going to talk about these things in these 2 days of session. Okay. So is my presentation on? How much time, sir? चलिए, कोई बात नहीं. So let's start with the first topic, which is what are the skills needed? What are the skills needed in today's world to excel in corporates and colleges both? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जरूरत होती हैं? क्या लगता है आपको? इट्स फॉर एवरीबडी. आप लोग भी आंसर कर सकते हैं बिकॉज यू आर ऑलरेडी है. अब आ गए तो हम आए नहीं हैं, बुलाए गए. वो जोक है ना, तुम स्कूल कैसे जाते हो? मैं जाता नहीं, मुझे भेजा जाता है. यस, क्या लगता है कौन कौन से स्किल जरूरी है टू सक्सीड? हमको क्या पता होता तो आपको थोड़ी बुलाते. आपको बुलाया है, आपको पैसे दे रहे, आप बताओ. यस, हो सकता है बिकॉज आई कैन सी दिस ऑन फ्यू फेसेस. अच्छा, बाय द वे, आर यू इम्प्रेस्ड? अभी मेरे से इम्प्रेस हो गए क्या? हाँ, ब्लेजर उतार दूं क्या मैं? थैंक यू सो मच. मैं अभी भी विशेष प्रसाद, विदाउट ब्लेजर. सो स्किल्स नीडेड टू सक्सीड. अरे गैस करो, गलत तो गलत. पीछे आ जाता हूं मैं. ये दूरियां. यस, सॉफ्ट स्किल्स. हाँ, होता क्या है सॉफ्ट स्किल्स से?
जल्दी राम की दुकान में मिलता है 12 रुपए का, नहीं? What are the skills needed? पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, मतलब कमी है इसकी। यस, आप में कमी, फैंटास्टिक। डिसिप्लिन, सो कंसिस्टेंसी अगेन पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, वेरी गुड। सो कमी है, यस। हाँ, हार्ड वर्क एंड फोकस, डेफिनेटली। लेकिन भूख लगी होती है तो तब फोकस तो आ जाता है, गोल नहीं है बेसिकली। व्हाट एल्स? अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, डिटर्मिनेशन, क्या होता है डिटर्मिनेशन? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। चाहत, ओके, चाहत है डिटर्मिनेशन, ओके। शर्मा की वर्मा, चाहत शर्मा, डिटर्मिनेशन। हाँ हाँ, बोलो बोलो, अरे बोलो ना, टेंशन नहीं। गोल्स की तरफ फोकस, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक डिटर्मिनेशन, ओके। हाउ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल? ना कितने लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं कम्युनिकेशन में, या मैं बहुत अच्छी हूं? मोर देन 5 कितने लोग हैं इन कम्युनिकेशन? 5 से ज्यादा, ओके। 1, लो सर, इतने बड़े हॉल में पूछोगे तो फिर 5 से कम ही रहने वाले। अकेले में मिलो, फिर बताते हैं हमारा कम्युनिकेशन। ऑनलाइन आओ, चैट पे मिलो, फिर मैं बताता हूँ मेरा कम्युनिकेशन आपको। यस, डेफिनेटली वी नीड दी स्किल्स। चैट पे ऑनलाइन ये तो चाहिए चाहिए टुडेज वर्ल्ड, बट डेफिनेटली वी ऑल्सो नीड पर्सनल कम्युनिकेशन। Why are we not good at personal communication? पता है किसी को? Lack of interaction, fantastic, किसी ने बोला यहाँ पर। क्या, what's a good name? प्रखर, वाह, सच में निखरा हुआ जवाब दिया है प्रखर ने। is बताओ सबको, फिर से बताओ। लैक ऑफ इंटरेक्शन, हम कम कर रहे हैं आजकल, यस और नो? वी आर ओनली कम्युनिकेटिंग विथ डिवाइसेस और ऑन डिवाइसेस, ओके। इट्स देयर। RGCR जून 21, नीचे से 4th 5th, विशेष के ऊपर वाला, यस, दिस वन। कॉपीराइटेड है, डिलीट कर देना। यस, सो चैट जीपीटी से मैंने पूछा था कि कौन से सोशल स्किल्स की जरूरत है, ठीक है? तो उसने मुझे 5 सोशल स्किल्स बताए थे। कितने? 5, बट इन रियलिटी देयर आर 8। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एआई पे फिलहाल डिपेंडेंट नहीं हूं, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है, हमारे पास है। तो कौन से स्किल्स हैं? सबसे पहला होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इट इज नॉट कम्युनिकेशन, इट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मीनिंग, डिफरेंस क्या है कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? हाँ, टू द पॉइंट, जो बोला है वो सामने वालों को समझ में आना चाहिए, ओके। विल कवर मोर अबाउट इट। देन सेकंड इज टीम। हाउ मेनी वी आर गुड विद टीम्स? वर्चुअल गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रोजेक्ट वर्क की बात कर रहा हूं। अच्छा, नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। व्हाट नेटवर्किंग? मेकिंग न्यू कनेक्शंस और एनहांसिंग योर कनेक्शंस। फैंटास्टिक, इंटेलिजेंट लोग हैं यहाँ पे। 4th इज, ये क्या होता है?
I know emotion, I know intelligence. But what is emotional intelligence? Balancing our emotions. Okay, fantastic. And डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे काम रहना. So who do you think is better at emotional intelligence? MS धोनी और विराट कोहली? कितने लोग कहते हैं MS धोनी? कितने लोग कहते हैं विराट कोहली? What if I tell you both are very good at emotional intelligence? Because at that point that aggression is needed, इसलिए वो दिखा रहा है. बट हारने के बाद में भी वो ऐसा रास्ते में चिल्लाता नहीं घूम रहा क्या. हेलो धोनी इज ऑल्सो इमोशनल इंटेलिजेंट. वो कहाँ जरूरत है. नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. सर मेरा दोस्त और उसकी बहन का झगड़ा हुआ था, मैंने ही सुलझाया था. वो बात अलग है कि दोनों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों का झगड़ा मुझसे हो गया है. नेक्स्ट इज नंबर 6 इज नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. लीडरशिप. देन लास्ट 2 adapting to situations of flexibility. ये तो सर हमको आता है. अभी देख लो ना, कल ही छुट्टी खत्म हुई और आज इतनी गर्मी है फिर भी फ्लेक्सिबल भी है. वो उधर बैठ रहते हैं, आपके लिए यहां पर आए, एक रिक्वेस्ट पर आ गए वो भी. नेक्स्ट इज प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल स्किल्स. ये क्या होता है? हाथ में लिखा है क्या होता है प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनल स्किल्स? यस. प्रोफेशनल एटिकेट्स. ओके, वेरी गुड. शिष्टाचार. आचार. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो आई विल गिव यू लिटिल ब्रीफ कि ये क्या होता है, बिकॉज वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग इन 2 days बिकॉज वी हैव अदर टॉपिक्स एज वेल. बट आई विल गिव यू लिटिल जिस्ट. हर एक पॉइंट के अंदर देयर आर 2 things that we are going to learn. So for example in effective communication, 2 ही चीज अगर हम रख लें, which is, सर पूरी स्लाइड आप ओपन कर दीजिए. लिसनिंग एंड सो जो यहां है वो यहां आना चाहिए. सिंपल. जो यहां है वो यहां. आई विल गिव यू टेक्निक्स फॉर दैट, डोंट वरी. नेक्स्ट इज टीम वर्क. टीम वर्क में क्या है? कोऑपरेशन. आई शुड बी एबल टू cooperate with people and also adopt to the team's need. अगर मेरा बॉस रूड है तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मैं दूसरी कंपनी देख रहा हूं. आई शुड बी एबल टू अडॉप्ट. देन इन नेटवर्किंग देयर आर अगेन 2 skills which is building relationship and socializing. कैसे हैं हम लोग सोशलाइजिंग में? बेकार. ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं. देन इमोशनल इंटेलिजेंस में इट इज बोथ एम्पैथी एंड एज ही राइटली सेड इट इज सेल्फ रियलाइजेशन. टू बी अवेयर कि मैं इस वक्त किस इमोशन में हूं एंड देन इफ नीडेड आई नीड टू चैनलाइज इट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नंबर 5 इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. इसमें भी 2 चीजें हैं. एक तो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड इज म्यूचुअल बेनिफिट्स. इट इज नॉट आई विन यू लूज और यू विन आई लूज की जाने दे, नहीं. विन विन. नेक्स्ट इज लीडरशिप. लीडरशिप में क्या है? टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ what I have done or decisions that we have taken or
एज अ टीम वॉट एवर वी हैव डन, एंड नेक्स्ट इज इंस्पायरिंग अदर्स। ये तो आता है हमको, है ना? बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे, रोज तो स्टेटस लगाता हूं मैं। देन एडेप्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट ओपन। अभी कॉलेज में यूजुअली देयर इज ए कंप्लेन, कॉर्पोरेट से भी कंप्लेन आती है कि कॉलेज में थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल इट इज डिफरेंट, है ना? पता है ना कि हमको बेसिक ही सिखाते हैं, हमको कभी वो एडवांस जो अभी वो नहीं सिखाते हैं। दैट इज वन पार्ट ऑफ एडॉप्टेबिलिटी, बिकॉज कॉलेज के पास में भी कुछ डिजाइंड करिकुलम है जो कि किसी यूनिवर्सिटी ने दिया है, सो वो उनको भी पता है, बट स्टिल दे नीड टू फॉलो। फैकल्टी बोल रही है थैंक यू, आप बता रहे हैं हमारे लिए। देन रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब ना लोग अलग समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं, इट इज अबाउट बाउंसिंग बैक। फेल हो गए तो भी कोई बात नहीं, अगेन वही, तूने ना बोल दी कोई बात नहीं, नंबर दे दे। लास्ट इज प्रोफेशनलिज्म इन विच एटिकेट्स एंड reliability. So again, we cannot cover all the points, but let's start with communication. So those who are saying मन में कि आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, मैं आपके लिए एक असेसमेंट लेकर आया हूं। लेट्स चेक आप कितने अच्छे हैं। रेडी? पक्का? तो थोड़ी देर ज्यादा देर बैठ गए, खड़े हो सकते हैं आप लोग प्लीज। एवरीबॉडी स्टैंड अप, एवरीबॉडी स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। हाँ, बैग रख दीजिए फिलहाल। So everybody become banana like this. Do as I do and say as I say. So I need a volunteer. कौन आएंगे? One volunteer. है कोई माइक वाला? हाँ, हाथ ऊपर, एक्सरसाइज करनी। चलो, गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम को उच्चारण नहीं करना है, आपको बोलना है पील बनाना। Say peel banana. Come on, look at my hand. Peel banana. Say 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 peel banana. Now peel the right side. Peel the right side. Peel the left side. Peel the left side. कितने लोग यंग हैं यहाँ पे? यंग। अरे कुछ लोग ने हाथ ही नहीं उठाया। जितने लोग यंग है वो एनर्जी के साथ करेंगे, जितने लोग बुढ़े हो गए नो कमेंट्स। स्टार्टिंग से कम ऑन। पील बनाना। मेरे अकेले की आवाज आप सबसे मिलकर ज्यादा आ रही है। शेम। माइक चैलेंज माइक हटा गए।
So did you enjoy? Did you learn anything from this? कुछ सीखने मिला? सीख के अच्छी बात है, मैं चाहता नहीं था. It was just to energize you. So ready for the assessment? पक्का? Phones या notebooks या tabs, whatever you are using, आप निकाल लीजिए. Next slide please. So you need to score yourself 1 minimum, 5 maximum. I am not going to ask you the score. मैं आपसे scores नहीं पूछने वाला. तो सच्चाई से, ईमानदारी से खुद को स्कोर करना है, ठीक है? और ये आपके क्रेडिट में भी नहीं जुड़ने वाला, ना आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, ये मार्क जुड़ेगा. तो ईमानदारी से खुद को स्कोर देना. यू कैन यूज योर फोन्स एज वेल, ठीक है? सो फर्स्ट इज listening skills. Listening skills में first parameter is I actively listen to others without interrupting. 1 is the lowest, 5 is the highest. मतलब अगर आप कम interrupt करते हैं so 1, अगर आप ज़्यादा करते हैं 2, और बहुत ज़्यादा ऐसे करते करते हर बार हम interrupt करते हैं तो 5. ठीक है? So when we are scoring ourselves on this, आप अपने friends को imagine नहीं करेंगे, आप अपने lectures को imagine नहीं करेंगे, आप अपने parents को imagine नहीं करेंगे. You need to imagine everybody. नहीं तो हम कोई एक केस लेकर उसमें स्कोर देते हैं, इट वोंट बी एनी इफेक्टिव. ओके. सेकंड इज आई शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स आर सेइंग बाय नॉडिंग एंड मेकिंग आई कांटेक्ट. इसमें भी 1 से लेके 5 तक स्कोर देना है. 1 मिनिमम, 5 मैक्सिमम. आई होप एवरीबडी इज राइटिंग नाउ. यू कैन यूज योर फोन्स एज वेल इफ यू डोंट हैव नोटपैड्स और नोटबुक्स. थर्ड इज आस्क clarifications or clarifying questions to ensure the understanding. So next parameter is again 1 minimum, 5 maximum. Next parameter is verbal communication. First is I articulate. Articulate means स्पीक वॉट यू आर थिंकिंग. ठीक है? इसका मतलब मुंहफट नहीं होता बाय द वे. सो अगेन 1 मिनिमम, 5 मैक्सिमम. सेकेंड इज यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड टोन फॉर डिफरेंट ऑडियंस. सो आई स्पेसिफिकली हैव मेंशन डिफरेंट ऑडियंस बिकॉज आई अंडरस्टैंड फ्रेंड्स के साथ में लैंग्वेज अलग होगी, पेरेंट्स के साथ अलग होगी, फैकल्टीज के साथ अलग होगी, कैंटीन वाले भैया के साथ और उनके साथ भी अलग होगी. किनके साथ? हाँ, भाई बहन. हाँ, किसी और के. आई एम कॉन्फिडेंट व्हेन स्पीकिंग इन पब्लिक. सो अगेन 1 मिनिमम, 5 मैक्सिमम. नेक्स्ट पैरामीटर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज जेस्चर, पोस्चर्स वगैरह जो हम यूज करते हैं उसमें. तो फर्स्ट इज आई यूज बॉडी लैंग्वेज दैट मैचेस माय वर्बल. सो सेंट्रल इंडिया में देयर इज अ थिंग, सब बोलते हैं ना यस. ये कैसा यस है? ये पता है यस, ये नो पता, ये क्या होता है? सो राइट gestures. So I maintain appropriate eye contact during the conversation. कि मैं बार बार फोन निकाल के देखता हूँ कि टाइम कितना हो गया, कब खत्म होगा इसका. लास्ट इज आई एम अवेयर ऑफ माई फेशियल एक्सप्रेशंस. सो यहाँ तो नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वो कभी स्माइल ही नहीं करते, पता नहीं चलता कि वो खुश हैं कि दुखी हैं. आप लोग तो नहीं होंगे, आप लोग तो अच्छे लोग, लेकिन है कुछ लोग. और हमारी फैकल्टीज भी होती थी कुछ ऐसी, अभी तो नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छी हैं. हमारे टाइम में हुआ करती, पता ही नहीं चलता था कि वो एक्साइटेड है कि नहीं है जो पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड.
लोग का तो बड़ा इंस्टीट्यूशन है। हमारी तो एक फैकल्टी थी, उनको हमने 2 बार स्माइल करते हुए देखा सिर्फ 2 साल में। दोनों टाइम हमारी क्लास पिक्चर क्लिक हो रही थी तब। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देन रिटन कम्युनिकेशन, हाँ ये है। सो आई राइट क्लियरली एंड इफेक्टिवली, फ्री ऑफ ग्रामर्स एंड स्पेलिंग एरर्स। फ्री ऑफ ग्रामर मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो उसको फ्रीडम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि लाइक विद इन द ग्रामेटिकल पैरामीटर्स आप लिखते हैं। नेक्स्ट इज आई टेलर माई राइटिंग स्टाइल टू सूट डिफरेंट फॉर्मेट्स। ईमेल लिख रहा हूँ, रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो अलग होगा, व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली अलग होगा। आई ऑर्गेनाइज माई राइटिंग एंड लॉजिकल coherently. Coherent means in sync. Next is interpersonal skill. I build rapport easily with others. Interpersonal means लोगों के साथ, 2 इंसान या उससे ज्यादा इंसानों के बीच के रिलेशनशिप। पेट्स के साथ नहीं, डिवाइसेस के साथ नहीं। नेक्स्ट इज आई हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स constructively. So 1 minimum, 5 highest. Last is you have question, कुछ पूछना? If you ask, you are fool for a minute. If you don't, so I am comfortable engaging in conversation with. So अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना कॉलेज में। एक वो खर्चा करने वाला ग्रुप होता है, हमेशा बिस्लरी की बोतल लेकर घूमते हैं। एक होता है जो हमेशा लड़कियों को अप्रिशिएट करते रहते हैं, है ना, विसल वगैरह बजा के। एक होता है वो जिम में, एक होता है एंटरटेनमेंट में, एक होता है कुछ पढ़ाई में, एक होता है मस्ती में। तो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। सो आर यू कंफर्टेबल विथ ऑल द ग्रुप्स और नॉट? देन लास्ट इज एम्पैथी एंड emotional intelligence. So I understand and respect others' viewpoint, उनके perspective. Second last point is I manage my emotions effectively in different situations. Manage लिखा है, control नहीं लिखा है। Manage लिखा है, control नहीं लिखा है। And last is I offer support and show empathy to those in need. Accident हुआ है तो खड़े रह के मैं रील नहीं बनाता हूँ, मैं हेल्प करता हूँ। हाँ, मैं शायद किसी को बोल दूंगा कि मेरी हेल्प करते हुए रील बनाए, लेकिन जेन्युइन हेल्प भी मैं करूंगा, बट जेन्युइन हेल्प, सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं। ओके, so रेडी? सो डू द सम, टोटल करिए। दोनों ने एक ही नोटबुक में लिख लिया। कितना पेपर बचा है आप लोग? प्राउड ऑफ यू। आप ही लोग सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। टोटल नहीं, मुझे मत बता, कीप इट विथ यू, इट्स अ पर्सनल थिंग। Done? How many are still counting? क्या स्कोर था JEE में? सर ये तो मत पूछो। होता तो आपको थोड़ी सुन रहे होते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So if you have scored between 90 to 105, congratulations, आप हॉल छोड़ के जा सकते हैं। You don't need these kinds of session. If your score is between 75 and 89, it is good. You can still improve. And if it is between 60 and 74, average है,
और बिलो 60 है तो so how many are between 60 and 74? 60 and 74? 60 and 74? 60 and 74? Okay, I am happy कुछ faculties ने भी खुद को score किया, great. So let me tell you, you are the most नीडेड खतरनाक जोन में आप लोग। देखो, अमीर लोग को टैक्स देने की जरूरत नहीं, कंपनी गरीब लोग को सब फ्री में मिल रहा है, मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है। आप मिडिल क्लास हो, हेलो, स्कोरिंग में समझ जाओ, ऊपर जाओ या फिर नीचे आ जाओ। ओके, एनीबडी विलिंग टू शेयर दैट दे आर लेस देन 60? ओके, 1 person is there, 2, 2.5, 3, 4 है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा है, हम ऑरेंज राशन कार्ड वाले हैं, आपको फ्री में चीजें मिलने वाली। नाउ यू नो योर रियलिटी, कहाँ है हम लोग। हेलो, तो मैं सिर्फ आप लोगों को थ्योरी देना नहीं चाहता था, आई वॉन्टेड यू टू स्कोर योर सेल्फ एंड मेक यू रियलाइज कि आप कहाँ हैं। बाय द वे, एनीबडी बिटवीन 90 and 105? 1. 90 से ऊपर है आपका स्कोर? अभी तो 60 में भी आपने हाथ उठाया था ना। 90, व्हाट इज एग्जैक्ट स्कोर? 89, 90 नहीं है मतलब, ओके। नहीं, मैं पूछ रहा हूं 90 एंड अबव, एनीबडी? हेलो, टेंशन लेने की जरूरत है, बट हंसा, इसीलिए तो कॉलेज में सेशन कराया ना, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना। सो बढ़े फिर आगे कम्युनिकेशन की तरफ। अब पता चल रहा जरूरत है, होता क्या ये कम्युनिकेशन? एनीबडी? बचपन से तो सुनते आ रहे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या है? हाँ, वार्तालाप, वो तो अनुवाद हो गया उसका। कम्युनिकेशन का निबंध बताइए, व्याख्या करिए कम्युनिकेशन की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिंपलेस्ट डेफिनेशन दे रहा हूं कम्युनिकेशन की, 4 वर्ड्स है। कितने? ओनली 4 वर्ड्स, 4 वर्ड डेफिनेशन, इससे छोटा डेफिनेशन नहीं मिलेगा। सेंडर है जिसने मैसेज भेजा है रिसीवर को, रिसीवर ने फीडबैक दिया या सेंडर ने फीडबैक मांगा। व्हाट इज सेंडर? सॉरी, हु इज सेंडर? मैं पहले भी बता चुका हूं, आप थे नहीं पिछले सेशन में। चीते की चाल, बास की नजर और विशेष के कान, ठीक है ना? या नहीं, मस्ती कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सेंडर कौन होता है? भेजने वाला। टाइम बचाओ थोड़ा सा। मैसेज क्या होता है? जो भेजा जा रहा है। रिसीवर कौन होता है? जो रिसीव कर रहा है, ठीक है ना? रिसीव कर रहा बोलेंगे हम, हिंदी में नहीं बोलेंगे इसको, अच्छा नहीं लगता। एंड देन फीडबैक, एंड फीडबैक। फीडबैक क्या है? हाँ, मैंने जो बोला वो सामने वालों को समझा कि नहीं, अगर मैं पूछ रहा हूं, वो क्या है? फीडबैक। क्या मैंने जो बोला वही समझा क्या? वो फीडबैक है। कितने टाइम खाना खाते हैं आप लोग दिन में? 3 से 4 बार। कई लोग तो 5-6 बार भी खाते हो, कुछ लोग ज्यादा भी खाते हैं। कुछ लोग के पास उतनी इनकम नहीं है, 2 ही बार खा रहे हैं, कोई बात नहीं। I'm just joking, I know आप पैसा बचा रहे हैं। So, भगवान ने दूध को भेजा कि धरती पे जाओ, लोगों को बताओ 3 टाइम नहाना, 1 टाइम खाना।
वो आया, उसने बोला 3 टाइम खाना 1 टाइम, गलती किसकी है? हाँ, भगवान की कि दूध की? दोनों की है। भगवान ने चेक नहीं है, क्या बोलेगा नीचे जाके? 3 टाइम खाना 1 टाइम खाना। लो, फूड की कमी हो गई थी कुछ सालों पहले। हाँ, नहीं, पोहे वाले के पास पोहे खत्म हो जाते हैं या करी खत्म हो जाती है 3 टाइम खाने के चक्कर में, या टमाटर खत्म हो जाते हैं। सही बात है, समझ रहे हैं? जो मैं बोल रहा हूं सामने वालों को सेम समझ रहा है कि वो कंफर्म करना है। मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स दे फेल टू डू फीडबैक एंड देन द रिजल्ट इज समथिंग एल्स। वो बोलते क्या बोला था और क्या कर दिया तूने। I'll give you a practical scenario जो मैंने देखा मेरे आंखों के सामने। So I was training a automobile company, नाम नहीं लूंगा। So I was on the workshop training and one of the managers he said to a washing team मतलब वो बंदा जो कार की क्लीनिंग करता है। So this person is 4 years experience, 4 साल का एक्सपीरियंस बंदा है। और मैनेजर ने उसको बोला ये गाड़ी नंबर है, ये यहां खड़ी है, आप जाके इंटीरियर क्लीनिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सो ही वेंट, इंटीरियर क्लीनिंग किया और वापस आ गया करीब 15-20 मिनट्स में। तो मैनेजर बोला 15 मिनट 20 मिनट में इंटीरियर क्लीनिंग होगी तेरी? हाँ सर। चलो दिखाओ। सो कार के पास गए, मैनेजर कार का डोर खोल रहा है। सर आप वहां कहां जा रहे हैं? ये बोनट खोल रहा है। मैनेजर के लिए इंटीरियर क्या है? सीट और आसपास के लिए। इसके लिए इंटीरियर क्या है? इंजन और आसपास। भाई साहब ने बोनट खोल के इंजन के आसपास प्रेशर वॉश कर दिया पानी से। मैनेजर ने सर पकड़ के बैठ गया, पागल, एक बूंद भी पानी अंदर चला गया था, 40-50 हजार का खर्चा अपने ऊपर आ गया था। गलती किसकी है? दोनों की। क्यों ना रिसीवर ने फीडबैक दिया? इंटीरियर क्लीनिंग। अच्छा, ये 4 साल एक्सपीरियंस बाद में पता चला कहां का है? ये घर घर जाके गाड़ी धोता था। हेलो, उसने बोला 4 साल एक्सपीरियंस। फीडबैक, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, बाकी कम्युनिकेशन में कुछ समझने की जरूरत ही नहीं। फ्यू पीपल वेट फॉर फीडबैक टिल द एंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स, स्कूल में जब एग्जाम होते हैं, रिजल्ट फीडबैक है। हेलो, तो पहले क्या होता था? वो फाइनल एग्जाम में रिजल्ट पता चलता था कि क्या मैंने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, या किसको समझता है किसको नहीं समझता है, किसका लर्निंग पैटर्न किस तरीके से है। इसीलिए फिर सेमेस्टर पैटर्न्स आ गए एंड उसमें भी इंटरनल टेस्ट होने लगे। दैट इज व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक। समझ में आ रही बात? हेलो 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 हेलो, समझ में आ रही है? पक्का? फीडबैक क्या समझ में आया? हाँ, बोलो बोलो। फीडबैक इज नेसेसरी। फीडबैक इज, लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, लड़की शर्माई और चली गई। इसको लगा शर्माना मतलब हाँ है। इसने पूरी प्रिपरेशन कर लिया, शादी बारात वारात लेके सब घर पहुंच गया। लड़की नाइट सूट में, अरे तू तैयार नहीं, किस चीज के लिए? शादी है ना अपनी, मुझे प्रपोज तो किया ना। मैंने हाँ हाँ बोला। हेलो, फीडबैक वॉइस, समझेगा? देखो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, मैं केस स्टडीज नहीं दे रहा हूं। जब आप मैनेजर बने या फिर आप एग्जीक्यूटिव बने, सीईओज बने, डोंट फॉरगेट फीडबैक, बिकॉज एट दैट टाइम आपके पास समय कम होता है। बट टू सेव टाइम, फीडबैक इज नीडेड। इफ नॉट, सेम टास्क नीड्स टू बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, in any kind of communication, there are few problems that we are facing as youth, which is fear of communication. क्यों नहीं बोल पा रहे हम लोग? तो 4 चीजें। सबसे पहला है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो हमने बात की थोड़ी देर पहले।
कि प्रपोज नहीं कर पाया 4 साल तक बिकॉज कॉन्फिडेंस की कमी थी. सेकेंड, वी आर स्कैर्ड ऑफ जजमेंट. LKK डिजीज, LKK पता है? LKK 12th स्टैंडर्ड साइंस, सभी साइंस के हैं ना. LKK लोग क्या कहेंगे? डिजीज लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रोग, सबसे बड़ा रोग. सो वी इवन मी, वी आर स्कैर्ड ऑफ व्हाट पीपल विल से. इसका सिंपल टेक्निक है. आई डोंट नो लास्ट टाइम बताया था कि नहीं बताया था, फिर भी बता देता हूं दोबारा. डर लगता है ना, लोग क्या कहेंगे? हेलो, यस. वो गधे और फादर एंड सन वाली स्टोरी सबको सुनी है ना, क्यों जा रहे थे उनको गधा मिलता है. सुनी है सबने? नहीं सुनी? वो जाते हैं उनको गधा मिलता है तो वो लिख लेते हैं साथ में, फ्री में गधा मिला. अब तीनों चल रहे हैं, तीनों मतलब फादर सन एंड दी डोंकी. तो वाइल दे आर वॉकिंग, कुछ विलेजेस सामने से क्रॉस कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि अरे क्या पागल लोग हैं, गधा है फिर भी पैदल चल रहे. दोनों बैठ जाते हैं. फिर कुछ लोग आते बोलते कितने निर्दयी लोग हैं, दोनों गधे पे बैठ गए. तो शर्म आ जाती है. फादर उधर जाते हैं, बेटा चलता है. फिर कुछ लोग आते बोलते अरे जवान बेटा होकर बूढ़े बाप को चला रहा और खुद मजे से बैठा है. शर्म आ जाती, वापस स्वैप. फिर कुछ लोग आते हैं, पापा को बोलते हैं बेचारे बच्चे को पैदल चला रहा और खुद मजे से बैठा हुआ है, कैसा बाप है. सो गांव पहुंचे तो गधा इनके सर पे. सो पीपल आर गोइंग टू से समथिंग इन एनी सिचुएशन. हेलो हेलो. तो क्या करना है सिचुएशन में? एक टेक्निक है, मैं आप सबको बताता हूँ. ऐसा फिस्ट सामने लाइए, फिस्ट, एवरीबडी फिस्ट. राइट है, राइट ही है तो राइट हैंड, लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड. एवरीबडी फेस के सामने होना चाहिए, फेस के सामने. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, फेस के सामने. और 1 2 3 4 5 और बोलो यू कांट सी मी. क्यों? हाँ, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आपका गोल सेट है ना, आप कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, एटलीस्ट यू आर कम्युनिकेटिंग. फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों के विचारों से, वॉट एवर दे आर सेइंग. हाँ, समझ जाओ वो बता रहा है. अच्छा, बाय द वे ये जो टेक्निक है ये मन में करना है. हाँ, और जो सीक्वेंस बताया वही सीक्वेंस फॉलो करना है. नंबर 5 से स्टार्ट नहीं करना है. कुछ लोग को शाम को समझ में आएगा. क्यों मन में करना है? बिकॉज वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरीबडीज एक्सपीरियंस एंड ओपिनियन. सुन लो सबकी, बुरा नहीं लगाना है. शायद कुछ अच्छी चीज सीखने मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं हम सुन नहीं रहे किसी को. दे हैव देयर एक्सपीरियंस, वो उनके पर्सपेक्टिव से वो बता रहे हैं, हमको सुन लेना है. शायद वो इंप्लीमेंट करके कुछ चेंज कर लो और आप और बढ़िया स्पीकर बन जाओ, बेटर कम्युनिकेटर बन जाओ. इसलिए सुनना है सबकी है. लेकिन मन में क्या है? जब भी कोई बोले तू नहीं कर सकता है, क्या बोलना है? क्या बोलना है? कांट हियर यू. क्या बोलना है? क्या बोलना है? बट मन में विथ रिस्पेक्ट. चेहरे पे क्या रहेगा? जी अंकल, जी आंटी. अंदर क्या बोल रहे? थर्ड इज आस्क्ड नेगेटिव एक्सपीरियंस. सो देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ पीपल, 4 लोग थे, एंड दे आर कैरिंग अ ह्यूज ट्री. बहुत बड़ा ट्री जो वो लेकर घूम रहे हैं चारों, जहां भी जा रहे हैं, हर जगह, हमेशा ट्रैवल कर रहे हैं. तो वो बड़ा लॉग होता है ना, उसके साथ में. क्यों? किसी ने पूछा ऐसा कि इतना बड़ा ट्री लेके क्यों घूम रहे? नहीं, बोले हमारे गांव में ना एक बार बाढ़ आई थी, इसी झाड़ ने हमको बचाया, तो हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे. अभी हमेशा हमारे, अभी वो खुद ही टूट के बह रहा था, उसका सहारा मिला. कुछ लोग वो पास्ट एक्सपीरियंस लेकर अभी भी घूम रहे हैं.
कि मैं 9th स्टैंडर्ड में एक बार नाम बताने के लिए खड़ा हुआ था क्लास में तो लोगों ने हंस दिया था, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा। और जो लोग हंस रहे हैं उनके साथ ऐसा हुआ इसलिए वो लोग हंस रहे हैं, ऐसा। यस और नो? हाँ, मैं एक बार पार्टी में नाम बताते बताते बता गई थी, स्टैमर। तब से मुझे डर लगता है स्पीच पे जाके बोलने से। छोड़ दो ट्री, आगे बढ़ो। हो गया, सिचुएशन इज गॉन। लास्ट इज क्या है? मैं जब सब सीख जाऊंगा ना तब मैं स्टेज पे चढ़ूंगा और आग लगा दूंगा, आग। हाँ, पूरी पढ़ाई कर लूंगा ना तब एग्जाम देने बैठूंगा। परफेक्शन होना चाहिए। थोड़ा मेरे अंदर भी है। आई डोंट लाइक एनीबडी इफ दे वॉश माई क्लोथ्स, एज इन ऐसा नहीं कि मुझे करवाना पसंद नहीं है, आई एम ऑल्सो लेजी, बट द वे दे वॉश माई क्लोथ्स आई डोंट लाइक इट। आई वॉश माई ओन क्लोथ्स। हेलो, मेरी फैमिली कितनी खुश है देखो। क्यों? वो दाग नहीं होना चाहिए, अच्छी चीज है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि धोते बैठे दिन भर, पहनने के लिए कपड़े नहीं रहेंगे फिर। परफेक्शन इज गुड, बट दोज हु आर परफेक्ट दे आर गॉन। हेलो, कहां गए? 4th फ्लोर पे नहीं, गॉन फॉर गुड। यस, सो व्हाट कंप्राइजेस ऑफ कम्युनिकेशन? नेक्स्ट पेज प्लीज। स्लाइडर नहीं है क्या अपने पास? नहीं है ना? ठीक है। सो हाउ डू आई बिल्ड माई कॉन्फिडेंस? दीज आर दी 5 स्टेप्स। कैसे बनाऊं मेरा कॉन्फिडेंस? सबसे पहला स्टेप है, देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमको हिला देती है। वी नीड टू फाइंड आउट दोज थिंग्स। सो व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग ऑन स्टेज, आई रियलाइज दैट व्हेन आई लुक इनटू पीपल्स आई, जब मैं लोगों की आंखों में देखता हूं तो मेरे को डर लगता है। मुझे खाली स्टेज पे खड़ा कर दो, नोबडी इन दी ऑडियंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ट्रिगर क्या था? कुछ लोगों का ट्रिगर क्या होता है? जब मैं बोल रहा हूं किसी ने कुछ बोल दिया, पीछे कमेंट कर दिया, तो उनको लगता है शायद बुराई कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। एवरी पीपल में हैव डिफरेंट ट्रिगर्स। कुछ लोगों का ट्रिगर हो सकता है कि आई नीड टू ड्रेस वेल बिफोर आई। सो यू फाइंड आउट आपका ट्रिगर क्या है, किससे आपको फर्क पड़ता है, एंड यू वर्क ऑन इट बाय डीप ब्रीदिंग। बिकॉज आप स्टेज पे खड़े हैं या आप किसी से भी बात कर रहे हैं, फॉरगेट अबाउट स्टेज। कई लोग तो दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ न्यू पीपल। कितने लोग पार्टियों में इस डर से नहीं जाते कि नए लोग मिलेंगे? सच बताओ। चलो, सी देयर आर पीपल। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। दे आर बीइंग वेरी ट्रूथफुल। जोरदार जोरदार। हेलो, मेरा भी सेम प्रॉब्लम था। मैं बोला ना, इंट्रोवर्ट। पहले लो कॉन्फिडेंस का इशू था में। व्हाई? बिकॉज आई हैड फेल्ड इन माय 9th स्टैंडर्ड। स्पेलिंग्स नहीं आती मुझे, आज भी नहीं आती बाय द वे। आई फेल। तो मैं पार्टी में जाऊंगा, फंक्शन में जाऊंगा, तो रिश्तेदार पूछेंगे ना, रिजल्ट आ गया, कितने परसेंट आए? तो मम्मी पापा को बताना पड़ेगा कि फेल हो गया, क्योंकि मैं तो मेरे मुंह से